present here in Kopri Panchpakadi constituency, in this polling booth where Chief Minister Eknath Shinde will be coming to cast his vote, and we can see that it's early morning hours, and a lot of people have already gathered here, and especially becomes an important one, this particular booth, because it is a pink booth. And let us talk to these women here who've come early in the morning to vote. तो आप बताइए कि आप इतने सुबह जल्दी वोट करने के लिए आए कि आपने तय करके रखा था कि आपको सुबह जल्दी आके वोट करना सो हम लोग एवरी टाइम हम लोग सुबह जल्दी आके ही वोट करते हैं एंड इट्स नाइस बिकॉज लाइन भी नहीं होता है एंड फटाफट वोटिंग भी हो जाती है एंड अपनी ड्यूटी भी है फर्स्ट आके वोट करना फॉर दैट वी हैव कम अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरा कौन सा इलेक्शन है आपका या आप करते हैं? हो गया टाइम हो गया ऑलमोस्ट 5th या 6th वोटिंग है मेरा। हम देखते हैं कि मुंबई में काफ़ी कम वोटिंग टर्नआउट होता है यूजुअली, तो आप कुछ कहना चाहोगे मुंबई के यूथ के लिए, मुंबई के लोगों के लिए, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग यहाँ पे होता है? एक्चुअली यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा कम है, तो इफ़ एजुकेशन सिस्टम बढ़ जाएगा सबको नॉलेज बढ़ने लग जाएगी। यूथ एक्चुअली रजिस्टर भी नहीं करते कि वोटिंग प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है वोटिंग कार्ड के लिए एंड वो सब के लिए। अगर वो शॉर्ट हो जाएगा, ऑनलाइन प्रोसेस सब हो जाएगा, तो यूथ भी उसमें इनिशिएटिव लेगी करने के लिए वोटिंग प्रोसेस के लिए, तो बढ़ जाएगा ये सब चीज़ें। So you're hopeful कि it will increase. Thank you so much. Thank you. These are the women here in Thane who are very optimistic about the voting turnout increasing in the entire Mumbai region in coming days. We got a few voters here. आपने वोट कर दिया सर? जी कर दिया सर। आप तो बहुत जल्दी से वोट। या एक्चुअली वी आर द यंगस्टर, सो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारे गवर्नमेंट को इलेक्ट करने की। सो सुबह उठ के ही जिम्मेदारी सबको ये निभानी है, जो जल्दी उठ रहे फटाफट आके वोट कीजिए ताकि आगे जाके क्राउड ना हो। सर बताइए कि आप कौन से इश्यूज़ को मद्देनजर रख के वोट कर रहे हैं? व्हाट आर द इश्यूज यू लुकिंग एट बिफोर वोटिंग? पर्टिकुलर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में द मेन इशू इज़ रिगार्डिंग द क्लस्टर। सो दी मेन इशू तो 10-15 साल से हमारे जो एरिया में इशू चल रहा है वो क्लस्टर का चल रहा है, एंड करंटली जो हमारे करंटली चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इनिशिएटिव भी उठाया है और क्लस्टर की योजना चालू है, तो आई थिंक बहुत सारे लोग यही एजेंडा लेके उनको वोट करने वाले या। आपको क्या लगता है सर, क्या आप सहमत हैं उनकी बात से? मेरा बेटा ही है और सहमति हूँ मैं उनके। और कोई इश्यूज है जो आपके हिसाब से? मैं हालांकि मैं गुजरात में मेरा काम काज है, लेकिन वोटिंग के लिए मैं रुका है इधर। आज वोटिंग हो गया, मैं कल चला जाऊँगा और बहुत बढ़िया कि मेरे हाथ से वोटिंग हो गया मेरा, बहुत मैं खुशी की बात है ये। Your local MLA is the chief minister here. Do you think that has an added advantage for you? Yes, definitely. He is also bringing the many schemes in our area. So definitely is an advantage, and not only when he was not a chief minister, still he has done a lot for all of us. So I think again when he will be elected, he will definitely do many things in our area, sir. Do you also feel the same? Yeah, I feel the same, and also being woman, I can say that there are many problems for women, and they had to get solved as soon as possible. In this constituency or across the state? Across the state, in my area, the small children, they don't have play area, so they play near gutters. Actually, I run coaching classes, so many girls come in my coaching as a student. So even I am very insecure about the security for the girls which comes to my classes. So for that security reason I have to leave my girl students by 7 p.m. because there are many drunkards and many people who roam around this area. Yeah, safety is the primary concern, because on the roadside we can't see the drunkards area, but when the like in the gullies and all, there are reasonable security issues. So I think the security concern for the particular Kishan Nagar should be tightened. Tell me, as a young voter, what are the problems, what are the issues that you keep in mind before going to vote? Or how much a role does marketing and advertisement have to play in determining your vote? ओके, सो एक्चुअली मार्केटिंग तो बहुत है। जैसे अभी बहुत सारी जो भी यूजुअली जो भी पार्टीज़ है बहुत सारी एडवर्टाइजिंग कर रही है, सबके कैंपेन्स बहुत सारी देखी है मैंने। मतलब एक्चुअली हम सबका एज अ यंग वोटर, मेरा सेकेंड टाइम वोट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब सिटीजन्स को वोट करना चाहिए। मतलब मैंने ऐसे देखा है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं था, तो उन्होंने जो पहले के इलेक्शंस थे उसमें भी वोट नहीं किया था या अब भी वोट नहीं कर रहे। सो वो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सबको वोट करना चाहिए। ऐसे अभी आप मतदान करने आए हो, आपने काफ़ी पहले मतदान किया होगा, बट ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो मुद्दों को देख के आप मतदान करते हो? 84 से मैं शिवसेना को ही वोटिंग करता हूँ, एकनाथ शिंदे को। कौन सी वाली शिवसेना? एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना? एकनाथ शिंदे। अच्छा, एकनाथ शिंदे 84 से मैं इधर वोटिंग करता हूँ, इधर काकरे चाल में रहता हूँ। 84 से 84 से पहला शाखा प्रमुख इधर बना, इधर ITI में उसका वोटिंग था मनोज शिंदे के साथ में। मनोज शिंदे गिर गया और ये एकनाथ तो शिंदे। आप फिर एकदम पुराने शिवसैनिक हो? हाँ, पुराना। आप लोग बताइए मैम प्लीज़, आप लोग बताइए कि जो अभी नए वेलफेयर स्कीम्स जो आए खास करके औरतों के लिए, तो उनका कैसे
इम्पैक्ट रहेगा इस पूरी इलेक्शन में, उसके बारे में आप ज़रा बताएं। बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा डेफिनेटली। हम लोगों को वो हेल्प कर रहे हैं शिवसेना और बीजेपी, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है। हम लोग भी, मुझे भी वही ये भी वो लोग हेल्प कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गुड इफेक्ट। हम अभी कुछ यंगस्टर से बात कर रहे थे, कुछ यंग लड़कियों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हालांकि डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है पर सेफ्टी का इशू अभी भी है। अभी भी गलियों में जब जाते हैं तो ज़्यादा सेफ्टी महसूस नहीं होती। तो आप जो यहाँ पे रह रहे हो तो आपका क्या होगा एक्सपीरियंस? मैं कुछ बोलना चाहूँगी, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट हाँ देखो सबका वही व्यू है। मैं रात को भाई कभी कभी 12 बजे भी आती हूँ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमें भी वही 12-1 बजे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम